the burden which Habakkuk the prophet did see. O Jehovah, how long shall I cry and you would not hear? Even cry out to you of violence and you would not save. Why do you show me iniquity and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. So the law is slack, and judgment does never go forth. For the wicked does compass about the righteous, so wrong judgment proceeds. Behold you among the hidden, and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days which you will not believe, though it be told you. For lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land, and to possess the dwelling places that are not theirs. They are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses are swifter than the leopards, and are more fierce than the evening wolf. And their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle that hasteth to eat. They shall come all for violence, their face shall sup up as the east wind, and they shall gather the captivity as a sand, and they shall mock at the kings, and the princes shall be a scorn to them. They shall deride every stronghold, for they shall heap dust and take it. Then shall his mind change, and he shall pass over and offend, imputing this his power to his God. Are you not from everlasting, O Jehovah my God, my Holy One? We shall not die. O Jehovah, you have ordained them for judgment, and Almighty God, you have established them for correction. You are of purer eyes than to behold evil, and cannot look on iniquity. So look you upon them that deal treacherously, and hold your tongue where the wicked devours the man that is more righteous than he, and make men as the fishes of the sea, as the creeping things that have no ruler over them. They take up all of them with the angle, they catch them in their net and gather them in their drag. So they rejoice and are glad. So they sacrifice to their net and burn incense to their drag, because by them their portion is fat and their meat plenteous. So shall they empty their net and not spare continually to slay the nations. भारी वचन जिसको हबाकुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तो मुझे अर्थात काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय का भी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। जाति जाति की और चित्ता लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर कि जब वो तुमको बताया जाए तो तुम
उसकी प्रतिति ना करोगी। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावल करने वाली जाति हैं, जो पराये वास्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गया है। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके गोरे चित्तों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और संजा को आयर करने वाले हंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चाले आते हैं और आयर पर झपटने वाले उकप के समान झपटा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बारे चले जाते हैं और बंदियों को बालों के किनारों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे तटों में उड़ाते और हकीमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़गारों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा भंडकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। मेरे प्रभु यहोवा है, मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बिठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निकाल जाता है तब तो क्यों चुप रहता है? तो क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछलियों के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? वो उन सब मनुष्यों को बांसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वो आनंदित और मगन है। इसीलिए वो अपने जाल के सामने बाली चराता और अपने महाजाले के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वो जल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा?